Hey everyone, welcome back to the special series by College Dunia, where we take interviews of all the students who have converted India's top B schools. Today we have on board a student from one of the hidden gems of India, the Lal Bahadur Shastri Institute of Management, and from LBSIM we have Prateek. Prateek, welcome to the show, welcome to the series. Hi Chaitanya. Yeah. So Prateek, before we start our interview, I would like you to tell us about your profile. How was your profile before you entered LBSIM? So before entering into LBSIM, I was born in Varanasi and brought up in Ahmedabad. So in 10 I got around 80 percentile and 12th I got around 64, which is comparatively low. And I have done my graduation in BPA, where my specialization in finance, where I got around 72.2 percentile. And here I graduated in 2021 and now I'm pursuing my PGDM from 2022 to 2024. Right. Perfect, Prateek. So, Prateek, please, if you don't mind, आपकी CAT की percentile क्या आई थी? I got around 85.01 in CAT and 78 in my ZAT examination. And I also gave MAT where I scored 216. Right. Thank you, Prateek. So, you are in LBSM like for a good amount of time, right? तो आपने अपने स्टूडेंट से अपने फ्रेंड से बात की होगी, तो LBSIM की कट ऑफ अराउंड कितने के रिवॉल्व कर रही थी कैट की? For general, it revolve around 85 to 88. But if someone is targeting FM and RNBA branch, so cutoff may vary from 80 percentile to 85. Right. And this past year they have launched two more courses, e-business and AIDS, where cutoff is live from 78 to 80. Yeah. So प्रतीक, अभी आपने बताया कि LBSM ने 2 मोर कोर्सेज लॉन्च किए, राइट? तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ आइडिया दे पाओ उन 2 कोर्सेज के बारे में. So first course is e-business, the second course is AIDS. So AIDS is generally थोड़ा एनालिटिक्स होता है और e-business डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड होता है. Right. अभी कट ऑफ कम है, बट बेस्ट पार्ट ऑफ LBSIM is हमारी एक umbrella प्लेसमेंट है. To every student will get equal opportunity. Right. तो प्रतीक, टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, पहले बात ही कर लेते हैं कि किस टाइप की कंपनीज आती है LBSIM में. We have a prominent recruiter. We have Big Four, PwC, EY, Deloitte, KPMG, and this last year JP Morgan come in our campus. This year D Shaw, Bain come in our campus. Right. And the good part is LBSIM, we have a student batch of 180 students. We are almost 150 placed in Big Four, Deloitte, KPMG. And Bain, right. तो Bain, JP Morgan. Right. So प्रतीक, जो Big Four आ रही है कंपनीज, राइट, ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को किस वैरायटी के रोल्स ऑफर होते हैं LBSIM में? Majorly role for finance, risk profile offered to student. Right. So अभी आपने बोला, you just talked about कि finance role. So how good LBSIM is in terms of its finance courses? LBSIM actually famous for its finance. So if you look up on LinkedIn or many social media platform, you come across that LBSIM famous for finance. And many if मैं corporate के बात करूँ तो वहाँ पे finance में LBSIM एक नाम है. Right. तो वो बहुत अच्छी बात है. मार्केटिंग के हमारे पास स्पेशलाइजेशन है एंड कंपनियां आती हैं, बट मेजरली फेमस फॉर फाइनेंस. राइट. तो प्रतीक, लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी 85 परसेंटाइल राइट आई थी, राइट? तो ऑफ कोर्स ऐसी परसेंटाइल आती है तो बंदा अपने बैकअप्स तो जरूर रखता है कि अगर इस कॉलेज में नहीं हुआ तो किसी और में हो जाए, राइट? तो आपने अपने लिए कौन से बैकअप्स रखे थे? सो मेरा बैकअप था निरमा, एंड ऑब्वियसली आई हैव अप्लाई फॉर निरमा, माइका, तापमी, IMI एंड LBSIM. ओके. तो अभी आपने बोला निरमा, तापमी और IMI, ये सब कॉलेजेस का आपने नाम लिया. तो आपने इन कॉलेजेस को किस क्राइटेरिया पे शॉर्टलिस्ट किया था खुद के लिए? क्या वो ROI थी, क्या वो प्लेसमेंट थे, क्या क्राइटेरिया यूज किया था आपने? Based on company visit and profile they offer, and also one more thing is ROI factor is also important when talk about college selection, and brand name. Right. So MBA में थोड़ा brand name बहुत वैल्यू करता है. Right. तो प्रतीक, ऑफ कोर्स आपने इन सब के लिए रिसर्च किया होगा, ठीक है? तो कहाँ से रिसर्च किया, कितना रिसर्च किया, थोड़ा बहुत आइडिया दोगे इसके बारे में? I have gone through College Dunia website and other site available. और मैंने काफी YouTube वीडियोस देखी, तो फिर पता चला कि मैंने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया कि अच्छा इस रेंज में इतनी कॉलेज है. So I applied for college like Tapmi, IMI, AGIM. So I received call for 3-4 colleges. तो उसका प्रोसेस हुआ, then I got offer letter. उसके बाद आगे
राइट, सो प्रतीक कॉलेज दुनिया यूज करता है, आप सब भी कॉलेज दुनिया यूज कीजिए प्लीज, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए आपके लिए। सो प्रतीक, आपने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, राइट? एंड मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत ही टिपिकल, मैं जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आपने जो रटा है जवाब है जो आपने इंटरव्यूज के लिए तैयार किया था, मेरे को वो नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाई MBA, एंड आप मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन को एक इंटरव्यू में कैसे जस्टिफाई करोगे? We can describe MBA like for career advancement, skill development, network opportunity. Like we have alumni cell, तो हमको बहुत से मतलब 5 alumni से contact में हैं, and for all are from big 4 big banks, and entrepreneurship culture is increasing in India. And last one is personal growth. Right, personal तो growth. like MBA जो opportunity देगा वो other course के बाद नहीं है. Right. So Pratik, you talked about the CAT percentile, right? तो आपको कितने महीने लगे थे अपनी CAT की प्रिपरेशन करने में? To be honest, it take around 6 to 9 months for me to prepare for a CAT. Like I have get CAT in 2021 where I score about 72% with preparation of 3 to 4 months. Right. So I have given CAT again and where I score 85. Right. So प्रतीक, अभी आपने खुद ही बताया कि आपकी 2021 में परसेंटाइल थोड़ी सी कम थी और बाद में ज्यादा आ गई, ठीक है? तो आपने ऐसा क्या फॉलो करना शुरू किया जो आपने पिछले अटेम्प्ट में नहीं किया था? लास्ट टाइम मैंने पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश की थी, बट दिस ईयर आई वाज लाइक कि अलजेब्रा के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मैं वो कवर कर लेता हूँ। तो इफ यू लुक अपॉन द मार्किंग स्कीम, अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन आते हैं, फॉर 80% यू हैव टू जस्ट करेक्ट 4 क्वेश्चन, and for 90 you have to correct about 6 to 7 questions. So just choose algebraic part and some part that you are comfortable in, उसको अच्छे से कर लो and बस यही। and for DILR मैंने 2 सेट प्रॉपर किए थे जो मेरे अच्छा था पॉइंट। राइट, सो टू ऑल आवर व्यूअर्स, कैट एग्जाम जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ अटेम्प्ट करो, आपको जितना आता है आप उसमें परफेक्शन लेके आओ और आप वही अटेम्प्ट करो जाके और वही ठीक करो, आप परसेंटाइल बहुत अच्छी गेन कर सकते हो। एंड प्रतीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने शायद अपने क्वांट सेक्शन के लिए भी 5 से 6 क्वेश्चन ही किए थे, ठीक? एंड यू मैनेज टू, राइट? सो बस जो आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन लेके आओ, ठीक है? सब कुछ कवर करने जाओगे तो फिर शायद आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्रतीक, मूविंग ऑन, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द most important, what is that one most important thing that every CAT aspirant should do to get a good percentile? First one is to एक गोल सेट करना होगा एंड उसको देखना होगा कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक पोर्शन कवर करना है, उसको पूरा सॉल्व करके देखना है कि हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। एंड फॉर वर्बल यू हैव टू गो थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, EON एंड वेरियस वेबसाइट। राइट, verbal was the toughest part for CAT screen, I would say. Right. So प्रतीक, हमारे कोई किसी भी एस्पायरेंट के लिए सबसे बड़ा डिलेमा यही रहता है कि क्या ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं अच्छा है, राइट? नाउ दैट यू आर इन LBSIM, ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे क्या वो खरा उतर पाया है कि नहीं, तो उस पर थोड़ा सा आप हमारे को फीडबैक दोगे? Yeah, actually it's depend on person. Like someone is from IIT, तो उसको IIM ही टारगेट करना चाहिए, I would say, क्योंकि उसका है। But it depend on person. But college क्या है कि opportunity देगा आपको। And college में like मेरे friend माइका में and I was in LBSIM, तो मैं देखता हूँ we have various club, PCL, alumni cell, and various opportunity to grow our personality. And ये कि college personality वो देगा आपको, एक opportunity देगा और you have to grab it. Right. तो टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि कॉलेज का काम आपको अपॉर्चुनिटीज लाके देना है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे ये आपका ही काम है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, राइट प्रतीक? तो अभी हम बात करते हैं प्रतीक ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज की, ठीक है? तो पहले मेरे को जानना है कि आप किसी ग्रुप डिस्कशन के लिए अपीयर हुए थे? Yeah, actually I was appearing group discussion in LBSIM and also for NIRMA. Right. तो हमारे को अपना एक्सपीरियंस बताओ कि क्या टॉपिक था, आपने कैसे हैंडल किया, सब कुछ बताओ। ग्रुप डिस्कशन में मेनली करंट अफेयर एंड कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस होता है। सो इन LBSIM दे गिव टॉपिक द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। सो सब लोग मेंटल हेल्थ पे जा रहे थे। आई वाज जस्ट टॉकिंग कि वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट योगा, एंड इन निरमा दे गिव टॉपिक ऑफ रेड इज गुड एंड येलो इज बैड। सो दे जस्ट checking the thinking ability and critical thinking of a student.
सो मेन ये होता है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, आप कैसा सोचते हो उस टाइम। देखो, येलो इज गुड एंड रेड इज बैड बहुत ही वियर्ड टॉपिक है, राइट? तो उसमें बंदा क्या ही बोले, एंड अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? फर्स्ट वन इज तो आपको अपनी थिंकिंग हॉरिजॉन बढ़ाना पड़ेगा, एंड थर्ड एंड उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा थोड़ा। दे आर मेजरली टेकन कि बंदा एग्रेसिव नहीं हो रहा है, वो हैंडल कर रहा है सिचुएशन। एंड थिंकिंग का क्या है कि वो आप सोचोगे तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऐड हो ही जाते हैं। यू कैन गो इनटू हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के कुछ पॉइंट उठा सकते हो, कुछ अपने आसपास देख सकते हो, तो कुछ ना कुछ मिल सकता है, राइट? तो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में भी यही रहा है प्रतीक, कि ऐसे टॉपिक्स में जो आपका पैनलिस्ट है वो ये नहीं देख रहा कि आप सही हो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स में कुछ सही कुछ गलत नहीं है, आप किस तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट कर पा रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। एंड प्रतीक, आप कोई एक्सटेम्पर के लिए अपीयर हुए थे किसी अपने? Yeah, actually I appear for extempore in Nirma University, where they asked me about कि अपने पेन के बारे में 2 मिनट बोलो। तो मैंने पेन का बताया कि पेन के यूजर्स, उसके मार्केट शेयर एंड पेन में क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, 4 Ps, ये वो। ओके। बट बहुत ही आपको ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं कि आपको बिल्कुल ही मतलब जो आप सोच के आए तो उसको बिल्कुल हटके दे देते हैं, एंड आपका सारा थिंकिंग प्रोसेस धरा का धरा रह जाता है, बहुत ही वियर्ड रहता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। तो प्रतीक, अब आगे बढ़ते हैं आपके LBSIM के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है? तो अब हमारे को सब कुछ बताओ, क्या था, कितने पैनलिस्ट थे, और कितनी देर तक चला, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ। सो LBSIM का इंटरव्यू मेरा ऑनलाइन था, तो पहले GT हुआ था, एंड GT के बाद पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद एक थोड़ा सा इंटरव्यू के बाद एक और इंटरव्यू हुआ था। दे जस्ट आस्क्ड अबाउट द करंट अफेयर। सो GD हुआ, GD में दे आस्क्ड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, एंड GD में कुछ एक पैनलिस्ट है, 7-8 लड़के थे, एंड आफ्टर दैट पर्सनैलिटी में 3 पैनलिस्ट थे, एंड दे आस्क्ड अबाउट द ओवरऑल क्वेश्चन लाइक from work experience and past academic and like graduation के कुछ basic question होते हैं कि someone know कि not, and उसके बाद current affair के question like chief minister of Gujarat, UP, and current जैसे moment चल रहा है NRC moment, CA, तो उसके बारे में थे basic question and COVID related. Right. So प्रतीक, अभी आपने खुद ही बताया कि करंट अफेयर्स और ये सब के बारे में पूछा जाता है, तो आप जब अपने पर्सनल इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कितना कुछ कवर किया था? क्योंकि ऑफ कोर्स सब कुछ आप नहीं कवर कर सकते, एंड अगर आप कुछ कवर कर भी रहे हो तो बिल्कुल डीप में भी कवर नहीं कर सकते, किसी के पास इतना टाइम नहीं और किसी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती यूजुअली। तो आपने क्या अप्रोच फॉलो की थी? एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर डेली रीड करता था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर एंड ऑफ कैट एग्जाम मैंने थोड़ा बेसिक रिसर्च करना शुरू कर दी थी कि क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, एंड सम करंट अफेयर मैंने पढ़ लिया था। दे जस्ट जनरली आस्क कि नॉलेज है बेसिक की नहीं, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट लैक इन दैट। राइट। तो ये था, और आई थिंक कि स्टूडेंट को ये अप्रोच करना चाहिए कि थोड़ा न्यूज़पेपर्स को रीड करना चाहिए, एंड थोड़ा न्यूज़ देखनी चाहिए ऑनलाइन या कहीं भी कि थोड़ा क्या चल रहा है अभी अराउंड। राइट। सो प्रतीक, आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब शुरू की थी? जैसे कैट के एग्जाम जैसे रिजल्ट आया तभी के? आई हैव फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड आफ्टर डिक्लेयरिंग ऑफ कैट रिजल्ट। राइट। So Pratik, I think we should wind up our interview here only, and if you have any final words for all the CAT aspirants who are preparing for the CAT exam as well as the GDPI, the stage is all yours now. बस I would say one thing कि CAT and MBA पूरा personality पे होता है, and rather than working on किसी पढ़ाई में, आप personality को develop करने में अपने ज़्यादा ध्यान दो। Right. तो eventually placement में भी, हाँ sorry, इवेंचुअली प्लेसमेंट में जब कंपनी आती है तो उनको चाहिए होता है कि बंदा मार्केटिंग की नॉलेज हो, फाइनेंस में जाए तो फाइनेंस डोमेन की नॉलेज हो, प्लस कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करती है। राइट, परफेक्ट। एंड प्रतीक, विद दैट बीइंग सेड, हम अपना इंटरव्यू यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है? एंड टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, अभी जैसे आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेजेस अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, तो अपना रिसर्च वर्क बहुत अच्छा रखो, ठीक है? उसमें गलती मत करो, एंड अपने लिए ऑप्शंस खुली रखो, ठीक है? And to all of viewers, we hope we were able to add some value to your preparation. And to Pratik, we thank you a lot. I know MBA life बहुत hectic हो सकती है, and thank you for sparing so much time. And to all the viewers, if you find this video a little bit knowledgeable, please subscribe to the channel College Dunia MBA. Like this video and share with all your friends. And Pratik, thank you so much. Thank you, Chaitanya.